Today, today is 25th of August. We are starting with the topic of NI approach, net income theory. In the net income theory, the assumptions are market is efficient, there are no taxes, and EBIT is constant. The overall cost of capital is dependent upon the capital structure. If we increase the debenture capital, if we increase the debt capital in the structure, it will increase the value of the firm and it will decrease the overall cost of capital. So whenever we take higher amount of debt in the capital structure, it will result into lower cost of capital because debt is cheaper than equity. Debt capital, when you raise debt capital, it is cheaper because the interest on that is lower than the equity capital. So these are the assumptions of net income theory. This theory was suggested by David Durand. He suggested that how we can increase the value of the firm and how we can reduce the cost of capital. ABC Limited company has an EBIT of 2 lakh. 8% debentures of rupees 5 lakh. Company is having already debenture capital. So this is a company which is having loan also and also equity shares. Equity capital, equity capitalization rate, that means KE is given in the question. What is equity capitalization rate? Investors desire to get 10%, shareholders desire to get 10% return from the company. This is the desire of equity shareholders. So this is also called as required rate of return. Shareholders, they require 10% from the company. They have this expectation. Equity shareholder expectation is called as cost of equity, KE. Calculate the value of firm. The value of firm is calculated. First, we have to calculate the value of equity, then add value of debt. You will get value of firm. Value of firm का formula बहुत easy है. Plus value of debt. Value of equity plus value of debt. Value of debt 5 laख ही रहता है, जो क्वेश्चन में दिया है वैसे ही रहता है, लेकिन वैल्यू ऑफ इक्विटी हम लोगों को खुद कैलकुलेट करना है. वैल्यू ऑफ इक्विटी हम लोग को कैसे कैलकुलेट करना है? पहले नेट इनकम निकालना है शेयर होल्डर्स के लिए जो पैसा बचेगा और उसको कॉस्ट ऑफ इक्विटी से डिवाइड करना है. वैल्यू ऑफ इक्विटी निकालने के लिए फॉर्मूला है नेट इनकम फॉर शेयर होल्डर्स डिवाइड बाय कॉस्ट ऑफ इक्विटी. 1,60,000 into 0.10. We will start from first EBIT. क्वेश्चन में EBIT दिया है 2 लाख लेस इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर. फाइव लाख का 8% डिबेंचर्स 5 लाख दिया है, तो 5 लाख का 8% 40,000. We will deduct the 40,000 amount from EBIT. We will get earning before tax, that is net income for shareholders. As per theory, there is no tax. NI theory.
What is NI theory? Net income theory. As per net income theory, there is no tax, so we will not deduct tax after EBT. EBT is the direct profit for the shareholders. Value of equity is equals to net income for shareholders divided by cost of equity. This is called as 16 lakhs. Value of equity is equals to net income for shareholders 1,60,000 divided by required return of shareholders divide करना है 10 directly divide नहीं करना 10 divided by 100 because this is percentage divide by 0.10 you will get value of equity rupees 16 lakhs. After that, this formula value of firm is equals to value of equity plus value of debt. Value of firm is equals to value of equity plus value of debt 16 lakhs plus value of debt क्वेश्चन में दिया हुआ है. क्वेश्चन में डिबेंचर का वैल्यू डेट कैपिटल दिया हुआ है 16 लाख प्लस 5 लाख. Total 21 lakhs. Rupees 21 lakhs is the value of the firm. KO overall cost of capital EBIT upon value of firm into 100. क्वेश्चन में EBIT दिया है उसको KO से अगर KO निकालना है ओवरऑल कॉस्ट निकालनी है कैपिटल की परसेंटेज में तो EBIT न्यूमरेटर में लेना है नीचे वैल्यू ऑफ फर्म इनकम हमेशा न्यूमरेटर में और वैल्यू ऑफ फर्म दैट इज इन्वेस्टमेंट अमाउंट. इनकम अपॉन इन्वेस्टमेंट जब भी हम रिटर्न निकालते हैं तो इनकम अपॉन इन्वेस्टमेंट करते हैं यहाँ पे हम लोग EBIT अपॉन वैल्यू ऑफ फर्म लेंगे इनटू 100 करेंगे तो हमारा पूरा कंपनी का कॉस्ट ऑफ कैपिटल सामने आ जाएगा दैट इज 9.52. ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल न्यूमरेटर में अर्निंग बिफोर टैक्स डिवाइड बाय वैल्यू ऑफ फर्म. वैल्यू ऑफ फर्म हम लोग को पहले वैल्यू ऑफ इक्विटी निकालना है उसमें वैल्यू ऑफ डेट प्लस करना है और वैल्यू ऑफ फर्म को डिनोमिनेटर में लेना है व्हाइल कैलकुलेटिंग ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल. अब इसको प्रूव करना है अगर एनआई थियरी को प्रूव करना है क्या थियरी था व्हेन द डेट कंटेंट विल इंक्रीज इन द कैपिटल स्ट्रक्चर दैट विल लीड टू इंक्रीज इन फाइनेंशियल लेवरेज दैट इज डिक्लाइन इन द कॉस्ट ऑफ कैपिटल and increase in the value of firm, increase in the value of equity shares. ये हम लोगों को प्रूव करना है आगे के क्वेश्चन में. इस क्वेश्चन के दो पार्ट है. फर्स्ट क्वेश्चन नॉर्मल कैपिटल स्ट्रक्चर दिया हुआ है पहले क्या था उसके बाद जब वो लोगों ने डेट कंटेंट इंक्रीज किया तो क्या ये फैक्टर्स में चेंजेस आया WACC कम हुआ और इक्विटी शेयर्स का वैल्यू बढ़ा वैल्यू ऑफ फर्म बढ़ा. ये सब हम लोग को चेक करना है प्रूव करना है. तो आगे के क्वेश्चन में ए पार्ट समझ में आया होगा अभी बी पार्ट देखते हैं.
दिस इज द एग्जिस्टिंग कैपिटल स्ट्रक्चर। कंपनी के पास इक्विटी कैपिटल है, कंपनी के पास डिबेंचर्स है, लेकिन जब हम इस डिबेंचर का अमाउंट बढ़ा देंगे, ठीक है, 5 लाख से 8 लाख या 10 लाख कर देंगे, तो क्या हमारा वैल्यू ऑफ फर्म बढ़ जाएगा? क्या हमारा कॉस्ट ऑफ कैपिटल कम हो जाएगा? यही हमें प्रूव करना है आगे। अगर हमारा केडी कांस्टेंट है, दैट इज 8%, अगर डिबेंचर का 8% कांस्टेंट है और आगे डिबेंचर की वैल्यू बढ़ जाती है, डिबेंचर का लोन अमाउंट जो है वो अगर हम बढ़ा देंगे, तो इसका क्या चेंजेस, इसमें चेंज आएगा, तो इसका कितना इम्पैक्ट होगा हमारे वैल्यू ऑफ फर्म के ऊपर? What is the impact of increase in the debt capital on the value of firm and overall cost of capital? This we have to check as per NI theory. So second part में हमारा डिबेंचर का वैल्यू बढ़ जाएगा और हम लोग को वापस से ये सब कैलकुलेट करना है, वैल्यू ऑफ फर्म, वैल्यू ऑफ इक्विटी एंड ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल, दैट इज KO. सेम क्वेश्चन, पहले भी EBIT कितना था? 2 लाख था। EBIT कांस्टेंट रहेगा, उन्होंने बोला है EBIT इज कांस्टेंट, कॉस्ट ऑफ डेट 8% इज कांस्टेंट, कॉस्ट ऑफ इक्विटी इज कांस्टेंट, वैल्यू ऑफ फर्म और ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल निकालना है। EBIT 2 लाख, डिबेंचर 5 लाख, 8% डिबेंचर्स 5 लाख, ये तो एग्जिस्टिंग कैपिटल स्ट्रक्चर ही था। इक्विटी कैपिटल, cost of equity capitalization rate, this is the desire of investors. They require 10% return from the company. What is capitalization rate? The required rate of return of shareholders. They desire to get 10% from the returns from the company. If company raises 2 lakh, extra 2 lakh by issue of 8% debenture to redeem equity shares. इन इक्विटी शेयर्स को रिडीम करने के लिए 2 लाख कंपनी ज्यादा रेस कर रही है, दैट मीन्स डिबेंचर एक्स्ट्रा हम लोग इंक्रीज कर रहे हैं। हम लोग एनआई थियरी को प्रूव करना है। एनआई थियरी ने क्या बोला था? जब हम लोग डिबेंचर को बढ़ाते हैं, डेट कैपिटल को 5 लाख से 7 लाख कर रहे हैं, तो हम लोगों का वैल्यू ऑफ फर्म बढ़ेगा, वैल्यू ऑफ इक्विटी बढ़ेगा, कॉस्ट ऑफ कैपिटल कम होगा। पहले कॉस्ट ऑफ कैपिटल 9.52 था, ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल 9.52 और वैल्यू ऑफ फर्म 21 लाख था। हमारा वैल्यू ऑफ फर्म आगे के क्वेश्चन में बढ़ना चाहिए तो ही प्रूव होगा, राइट? हमारा KO कम होना चाहिए, कॉस्ट ऑफ कैपिटल कम होना चाहिए, तभी हमारा एनआई थियरी प्रूव होगा। EBIT 2 lakh, this is constant, less old interest, पहले वाले डिबेंचर का इंटरेस्ट 5 लाख के ऊपर 8%, 5 लाख डिबेंचर कैपिटल, 8% इंटरेस्ट 40,000, न्यू इंटरेस्ट 2 लाख न्यू डिबेंचर्स, इसका भी 8% है 16,000, EBT, that is net income available for shareholders 1,44,000. EBIT में से ओल्ड इंटरेस्ट न्यू इंटरेस्ट डिडक्ट किया, टैक्स नहीं होगा। क्यों नहीं आएगा टैक्स? क्योंकि क्वेश्चन में नहीं दिया है, और दूसरी बात एनआई थियरी ने बोला है देयर इज अ एब्सेंस ऑफ कॉर्पोरेट टैक्स, दे अज्यूम दैट टैक्सेस एंड कॉस्ट ऑफ ट्रांजैक्शंस आर नॉट देयर. So as per theory, we are not deducting the tax and it is not also not given in the question. Value of equity, formula for value of equity. This you have to remember.
न्यूमरेटर में नेट इनकम फॉर शेयर होल्डर्स जो अभी आपने EBIT के बाद लेस करके निकाला अपॉन कॉस्ट ऑफ इक्विटी 1,44,000 divide by 10% is the expectation of shareholder. So value of equity is 14,40,000. Value of firm, ये भी फॉर्मूला याद रखो, value of firm is equals to value of equity plus value of debt. 14,40,000 plus 7 lakhs. 7 लाख कैसे आया? 5 लाख प्लस 2 लाख. दो डिवेंचर अमाउंट है, एक ओल्ड डिवेंचर्स 5 लाख का, एक न्यू डिवेंचर्स 2 लाख रुपीस. तो 5 लाख और 2 लाख 7 लाख, टोटल 21,40,000. हम लोग का वैल्यू ऑफ फर्म आ गया. उसके बाद ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल KO is equals to EBIT upon value of firm into 100. EBIT is 2 lakh and value of firm 21,40,000 into 100. 9.34. पहले कितना था? पहले वैल्यू ऑफ फर्म 21 लाख था. जब हमने डिबेंचर ऐड किया, जब हमने डिबेंचर को इंक्लूड किया तो 21,40,000 हो गया. 21 से 2140 हो गया, तो 40,000 का इंक्रीज हुआ वैल्यू ऑफ फर्म में. ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल आपका डिक्रीज हो गया. 9.52 था पहले, अभी 9.34 हो गया. हमारा कॉस्ट ऑफ कैपिटल कम हो गया और हमारा वैल्यू ऑफ फर्म बढ़ गया. तो ये थियरी, whenever we increase the debt proportion from 5 lakh to 7 lakh, we have increased the debt capital. It will decrease the cost of capital, overall cost of capital, and the value of firm will increase. This is called as net income theory. So we have proved this theory right by finding out the overall cost again, and we have observed that earlier it was 9.52, now it is 9.34%. Earlier it was 21 lakhs value of firm, now it is increased to 21,40,000.